Assalamu alaikum students. The chapter we are starting today is trade, which is the 11th chapter of your textbooks. In this chapter, we will study about trade, the significance of trade, distinction between domestic and foreign trade. Moreover, we will discuss about the advantages and disadvantages of foreign trade. And in the last, we will discuss about the Pakistan's major imports and exports. So students, open page number 96 of your textbook. Here we have a chapter trade. Let's start reading. Now, what is trade? Definition of trade. The exchange of goods and services between two parties is known as trade. According to first definition, ट्रेड हम गुड्स एंड सर्विसेज के तबादले को कहते हैं जो कि दो पार्टीज़ आपस में करती हैं. It is such an economic and social action under which we sell and buy our required goods and services and earn profit. For example, जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में लोग आपस में कमोडिटी को एक्सचेंज किया करते थे. बट ड्यूरिंग बार्टर पीरियड ट्रेड कुड नॉट progress rapidly because of the exchange of goods for goods, but it was only beginning which led us to present local, regional, national and international trade. Number 2 definition is the process of buying and selling is called trade. जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं या हम उसको सेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रेड कहते हैं. Kinds of trade. There are two kinds of trade. Number 1, inland trade. Number 2, international trade. Inland trade. The exchange of goods and services within a country is called inland trade. Inland trade हम उस ट्रेड को कहते हैं जो हम अपने कंट्री के अंदर करते हैं. वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपने कंट्री के अंदर ही एक्सचेंज करते हैं, उसको हम इनलैंड ट्रेड कहते हैं. इनलैंड ट्रेड सिटी टू सिटी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कराची टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर. इनलैंड ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड. The exchange of goods and services between the countries is called international trade. International ट्रेड हम उस ट्रेड को कहते हैं जब बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रही होती हैं. इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री टू कंट्री होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान टू वाशिंगटन, Washington to India. So this is called international trade. International trade is also known as external trade and foreign trade. Importance of trade. The natural resources of countries differ from place to place, but they play an active role in production of wealth. This production of wealth brings progress and prosperity to the economy of the country. Students, trade is very important for the progress of a country because हर कंट्री के, हर सिटी के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. इसीलिए हम आपस में ट्रेड करते हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारी कमोडिटीज़ जो है वो बनाई जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए वेल्थ प्रोड्यूस करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब और सिंध की बात करें तो दीज प्रोविंसेस आर रिच इन कॉटन प्रोडक्शन, बट अगर हम NWFP बलूचिस्तान की बात करें तो they are lack to produce it. So trade acts to remove the differences of unbalanced production among not only provinces of a country but also among nation of the world.
It is the trade which provides required goods to the people of the world who lack their production in their own countries. यानी जो भी हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तो हम वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पूरा कर लेते हैं। इसीलिए ट्रेड किया जाता है ताकि हमारी जो नीड्स हैं वो सब फुलफ़िल हो जाए। Distinction between domestic and foreign trade. Distinction means the difference between domestic and foreign trade. Foreign trade, domestic trade में क्या differences हैं? Number one difference is difference of mobility of labor and capital. यानी लेबर और कैपिटल की जो मूवमेंट है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लेबर होता है वो अपनी कंट्री में जो है वो अगर डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा है, डोमेस्टिक ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो वो कहीं पर भी इजीली मूव कर सकता है और अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर हम फ़ॉरेन ट्रेड की बात करें तो फ़ॉरेन ट्रेड में जो है वो लेबर्स को बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, they cannot move without enough traveling expenses, passport and visa. Sometimes family problems भी उनको फेस करनी पड़ती हैं, like marriages, property disputes and sickness of parents do not allow them to move. इसी तरह से जो कैपिटल है वो भी हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के कंसेंट के बगैर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर हमें दूसरे कंट्री की परमिशन नहीं है तो हम अपना कैपिटल वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेड में हम आराम से जो है वो अपने पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं without any restrictions. Number 2 point is difference of exchange rate. अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेड में हमें एक्सचेंज रेट का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि हमारी जो मनी है, जो हमारी करेंसी है, वो हमारी कंट्री के हर पार्ट में सेम ही होती है। बट अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जितने भी दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उनकी करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट होते हैं हर कंट्री से, विच क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ टू मेक पेमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, द वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रुपी डिफर्स फ्राम USA dollars, Saudi Riyal and UK pound, etc. So foreign trade is affected by the differences of exchange rates and fluctuation of values of the currencies of the countries involved in it. Number 3 is difference of trade policies. अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेड में अगर हम लॉफुली अपना ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और हम फ्रीक्वेंटली जो है वो अपना ट्रेड कर लेते हैं थ्रू आउट दी कंट्री। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमें मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, जो कि उनको बेनिफिट दे रही होती हैं और जिसकी वजह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना करना पड़ता है डोमेस्टिक कंट्री को। नंबर 4 इज़ डिफरेंस ऑफ मर्केंटाइल लॉस. मर्केंटाइल लॉस मीन्स जो ट्रेड लॉस होते हैं उनको मर्केंटाइल लॉस कहा जाता है। मर्केंटाइल लॉस कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं, इसीलिए ट्रेड करने से पहले बायलैटरल फॉरेन ट्रेड में टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कर लिया जाता है। इसीलिए वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी डिफ़िकल्टी जो है बाद में फ़ेस ना करनी पड़े, क्योंकि हर मर्केंटाइल लॉस में ये होता है कि कंट्री टू कंट्री जो है वो उनके लॉस अलग होते हैं, उनके ट्रेड लॉस होते हैं, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो मोड्स ऑफ पेमेंट होती हैं
हर कंट्री की वो अलग होती हैं, इसीलिए ट्रेड बायलैटरल ट्रेड करने से पहले जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर ली जाती हैं, उसके बाद फॉरेन ट्रेड किया जाता है। इन दिस वे फॉरेन ट्रेड इज डिफर्स अलॉट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपनेस ऑफ कमोडिटी। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें विद इन अ कंट्री अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो हमें महंगे पड़ रहे होते हैं, इसीलिए हम जो है वो दूसरे कंट्री से वो बाय कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स चीप रेट में बाय करता है वो है पेपर, मेडिसन, डिफेंस गुड्स एंड हैवी मशीनरी। In this way, foreign trade enables us to fulfill our home demands. Number 2 is stability to the economy. फॉरेन ट्रेड करने से कंट्री की जो इकनॉमी है वो स्टेबल हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आने लग जाती है, जो कि एक एडवांटेज है फॉरेन ट्रेड करने का। Number 3 is maintaining balanced price level. Foreign trade helps in maintaining the balanced price level. For example, Pakistan produces cotton and rice in surplus and enjoys a handsome export of them. फॉरेन ट्रेड से जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन रहता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगी और प्रोड्यूसर को लॉस होगा। नंबर 4 इज इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन ट्रेड करने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसीलिए जो है वो कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को सेल करते हैं ताकि इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो और कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। नंबर 5 इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज रिसोर्सेज। वो कंट्रीज़ जो कि मिनरल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, फॉरेस्ट्री और फिशरी रिसोर्सेस या इनमें से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो वो इन सब चीज़ों को या इनमें से वो चीज़ें जो उनको ज़रूरत है वो इंपोर्ट कर लेती हैं और अपनी कंट्री की नीड को फुलफ़िल करती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, नंबर 1, डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हर कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कंट्रीज़ जिनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है और वो उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनके पास हर फैसिलिटी मौजूद है, कैपिटल, हाई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपर्ट प्रोड्यूसर, तो वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करते हैं, इसीलिए जो है वो फॉरेन। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑन द पार्ट ऑफ पुअर कंट्रीज़ दैट फॉरेन ट्रेड ऑब्स्ट्रक्ट्स देयर प्रोग्रेस। नंबर 2 इज़ पीसफुल एटमॉस्फेयर। फॉरेन ट्रेड करने के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल डिसऑर्डर होता है या कोई भी कंट्री में क्राइसिस आता है तो इससे हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की सप्लाई होना बंद हो जाती हैं और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फॉरेन ट्रेड का। नंबर 3 इज़ ट्रेड राइवलरी। ट्रेड राइवलरी की अगर हम बात करें तो हमेशा जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट पर अपना होल्ड रखती हैं और इसके लिए अगर उनको किसी भी कंट्री को नुकसान पहुंचाना हो या जिनसे उनके फॉरेन ट्रेड रिलेशंस हो वो उनको नुकसान पहुंचा देती, which causes negative effects on the economies of poor countries. Number 4 is unnecessary economic crisis.
फ़ॉरेन ट्रेड में जो है वो एक एक्सपोर्ट रेस भी शुरू हो जाती है कंट्रीज़ में कि कौन सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंट्री होती है उसमें ही कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की। तो फ़ॉरेन ट्रेड की वजह से अननेसेसरी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाते हैं कभी कभी कंट्री के अंदर। पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट्स। पाकिस्तान जो चीज़ें इंपोर्ट करता है, नंबर 1 कैपिटल गुड्स। पाकिस्तान कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हैवी मशीनरी, क्रेन्स, ट्रक्स, बुलडोज़र, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन्स and bogies, aeroplanes, manufacturing machines for mills and factories. Number 2 is industrial raw material. Pakistan is rich in mineral and agricultural raw material output, but इसके बावजूद पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल सीड्स, मेटल, रबर एंड आयरन ओर और ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ से। नंबर 3 इज़ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्योंकि इनकी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, इसीलिए जो है वो पाकिस्तान ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टी, कॉफ़ी, ड्राई मिल्क, एडिबल ऑयल, बुक्स, मैगज़ीन, मेडिसिन्स वगैरह, ये सब चीज़ें कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। Number 4 is defense goods. Although Pakistan itself produces all kinds of general defense goods, but heavy warlike goods, modern weapons, tanks, radars, warplanes, helicopters, and raw material for weapons are imported for the defense of Pakistan. Pakistan major exports. नंबर 1 कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी एक्सपोर्ट करता है यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए को, जिसमें गारमेंट्स, बाज़ारी प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 2 इज़ राइस। पाकिस्तान अरेबियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम को राइस एक्सपोर्ट करता है। नंबर 3 लेदर गुड्स। पाकिस्तान यूके, ईरान, यूएसए को लेदर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो सेल करता है। नंबर 4 इज़ स्पोर्ट गुड्स। स्पोर्ट गुड्स में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट गुड्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट्स, टेनिस रैकेट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 5 इज़ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूएसए, जापान, चाइना, कनाडा, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को सेल करता है। वज़ीराबाद इज़ द मेन सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 6 इज़ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान में बहुत ब्यूटीफुली बनाया जाता है, जिसमें कॉटन शॉल्स, कुशन्स और एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लोरल डिज़ाइंस, लेडीज़ गारमेंट्स जो हैं बनाए जाते हैं। Number 7 is fish. Fish is one of the export of Pakistan by which we get foreign exchange. And Sri Lanka is our main customer. Karachi Fish Harbour is the main station of fish products. Dried and tin packed fish. Besides it, byproducts are also exported. The last one is manpower. Manpower ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं। पाकिस्तान इज़ अ थिकली पॉपुलेटेड कंट्री. इट्स पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल. दे हैव सॉट जॉब्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तान आर rendering their services as laborer, technicians, teachers, doctors, engineers and shopkeepers there. Pakistan earns a great amount of foreign exchange through them.